Hello everyone. Good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss a new chapter in your NCERT book, chapter number 6. The name of this chapter is Physical and Chemical Change. In this chapter, we discuss about the how changes around us, how many type of changes in our around us in food and other things also. Then we understand what is the physical change, and then we understand about the what is physical chemical changes. And then in chemical changes, we discuss and elaborate and explain some points. Where first one is rusting of iron, and next one is crystallization. Okay, first we start this chapter. We understand how changes occur around us. हमारे आसपास में किस टाइप के changes होते हैं. Which type of changes we said the physical change. Which type of changes we said the chemical change. In class 6, so you understand similar this chapter. Then is reversible and irreversible reaction, where we discuss about that. Okay, na, we take a paper and make a aeroplane. Again unfold it and make a paper again. So this is a reversible. हमने उसको वापस क्या किया, change कर लिया. So that one is reversible change. Okay, and whenever we take a paper and with the help of scissor we cut into a 10 to 5 times we cut this page. Okay, so this is a reversible or irreversible? Irreversible. When we cut this paper in smallest pieces, जब हम इस पेपर को कट करते हैं small pieces के अंदर, तो it cannot convert into a same plain page. वापस उसी पेज जैसा नहीं होगा. तो यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल बताए जो आप क्लास 6 में आपने रीड किया था कि what is reversible and what is irreversible. Reversible means we obtain again particular same as substance. Okay, irreversible means we don't get original piece. वापस हम उसी को नहीं get कर सकते. That is a irreversible reaction. Okay. Now we start in this chapter physical and chemical change. This type of changes we said the physical change. Which type of changes we said the chemical change. So every day you come across many changes in your surrounding. These changes may involve one or more substance. हम अपने आसपास में बहुत सारे changes देखते हैं, बहुत सारे phenomena हमारे आसपास में होते हैं. We will find that a number of changes keep occurring around us all the time. Some of are maybe natural and some are created by us. कुछ तो naturally होते हैं, भाई day से night हो रहा है, okay, night से day में convert हो रही है, फिर sun change हो रहा है, rise हो रहा है, then sunset होगा, then moon जो है वो अपनी positions को change करता है, अपनी shape को change करता है. ये changes जो है वो naturally हो रहे हैं. ओके, कुछ चेंजेस जो है हमारे थ्रू होते हैं. भाई आगे हमारे थ्रू कौन कौन से चेंज होंगे वो देखते हैं अपन. ठीक है, these changes में इन्वॉल्व अ चेंज. अब चेंज किसको बोलेंगे? मे बी साइज में चेंज हो जाए, मे बी शेप में चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो जाए. मे सॉलिड लिक्विड गैस जो है स्टेट्स के नेम है. भाई हमारे पास वाटर है, हमने उसको फ्रिज में प्लेस किया, देन इट कन्वर्ट इनटू अ सॉलिड फॉर्म, तो स्टेट चेंज हो सकती है, स्मेल चेंज हो सकती है. मिल्क टू कर्ड में, मिल्क को हम कर्ड में बनाते हैं तो उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, टेस्ट चेंज हो जाता है मिल्क का, है ना. और chemical compositions भी change हो सकती हैं. Let us study like a few changes about the melting of ice. We take a one by one point, and then we discuss how melting of ice, boiling of water, cutting a paper, setting curds from milk, and cooking of food, different type of changes. Okay, so here we start the first example. For example, your mother may ask you to dissolve a sugar in water. आपकी मदर आपको कह रही है कि भाई तो शुगर है 1 स्पून 2 स्पून, उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करना है. इट्स ओके टू मेक ए कोल्ड ड्रिंक. और क्या करना है? कोल्ड ड्रिंक बनाना है. मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन इज चेंज, मतलब आपने शुगर को उस पानी में डिसॉल्व किया, इट इज चेंज. यस, इट इज चेंज. सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज. आप मिल्क को कर्ड के अंदर चेंज करते हो, दैट मींस मिल्क चेंज हो रहा है किसके अंदर? कर्ड में. तो हियर वन चेंज इज अकर. समटाइम्स देखिए पहले सिंपल वाटर था, सिंपल शुगर थी, हमने दोनों को मिक्स कर दिया, देन वो शुगर सॉल्यूशन हो गया, यानी चेंज अकर हुआ. ओके, मिल्क टू कर्ड में चेंज हुआ तो मिल्क की पोजीशंस अलग होती है. आपको पता है कि लिक्विड फॉर्म में होता है, स्वीट इन टेस्ट होता है, बट व्हेन लिक्विड कन्वर्ट इनटू अ कर्ड इट्स स्टेट इज आल्सो चेंज. सेमी सॉलिड में चेंज हो जाता है, टेस्ट शार हो जाता है.
ठीक है, तो ये जो चेंजेस है, शॉरिंग ऑफ मिल्क इज अ चेंज। जस्ट सिमिलर स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड। रबर बैंड मीन्स जो आप पॉनीटेल बनाते टाइम यूज करते हैं, या हम किसी पैकिंग में जो रबर यूज करते हैं उसकी बात हो रही है। तो स्ट्रेचिंग अ रबर, आप रबर को स्ट्रेच करते हो, इट चेंज देयर शेप एंड साइज, ऑफ कोर्स इट चेंज देयर शेप और साइज। ओके, व्हेन वी लूज द फोर्स, अब हम उसमें से क्या करें, उस फोर्स को लूज कर दें, तो क्या होगा, रबर अगेन replace the stretching shape, it again regain our own shape, वो वापस से अपनी शेप में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं 3 टाइप की चेंजेस की बात करी। फर्स्ट में तो मैंने वाटर में क्या मिक्स किया बेटा, शुगर मिक्स किया, देन शुगर सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। नेक्स्ट में मिल्क को कन्वर्ट किया किसमें, कर्ड में, देन चेंज हुआ। नेक्स्ट एक रबर को मैं स्ट्रेच करती हूँ थोड़ा फोर्स लगा के, एंड फोर्स को वापस रिलीज कर देती हूँ, तो जो स्ट्रेच रबर है वापस अपनी सेम पोजिशन में आ जाता है। Make a list of 10 changes you have noticed around us. मैंने कितनी changes की बात की अभी, 3 changes की बात। So can you explain what type of more changes? Give me some examples. Now, very good. You all answered the very good answers. Very good. More of the maybe मैं कुछ example और लेना चाहती हूँ. Maybe folding of paper, cutting of paper, burning of paper. Okay, all are the different example we look around us. So some are the chemical and some are the physical. Now in this time we don't understand what is physical and what is chemical. We discuss only here what type of changes around us, किस टाइप के चेंजेस हमारे आसपास में हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने 10 to 12 डिस्कशन कर लिए चेंजेस के बारे में। इन दिस चैप्टर we shall perform some activity and study the nature of these changes. Broadly these changes are 2 kind, physical and chemical. इस पूरी चैप्टर के अंदर हम 2 चेंजेस के बारे में ब्रॉडली रीड करेंगे। फर्स्ट वन इज फिजिकल एंड सेकंड इज केमिकल। फर्स्ट हम कुछ एग्जांपल फिजिकल चेंजेस के लेंगे। ओके, देखिए, look at this paper, we cut in a 4 parts and then 1 part को भी हमने वापस again 4 parts में कट कर दिया। ठीक है, तो एक्टिविटी 6.1, कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस। एक पेपर को हमने 4 स्क्वायर पीसेस में कट किया। कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। Lay these pieces on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original piece of पेपर। तो ये कह रहे हैं कि क्या हमने एक पीस पेपर को 4 पार्ट में डिवाइड करके कट किया, देन एक पीस को वापस 4 पार्ट्स में कट किया। लुक एट दिस पिक्चर, ये 4 पार्ट, देन 1 पार्ट को वापस अगेन 4 इन पार्ट। बट these pieces on the floor or a table, the piece acquire the shape original piece of the, क्या हम इनसे वापस ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर बना सकते हैं? Obviously cannot join the piece back to make original piece. Obvious है कि भाई हम वापस से इनको भाई स्टिक करेंगे, ग्लू लगाएंगे, सेलो टेप यूज करेंगे, लेकिन वापस से वो सेम पहले जैसा पेपर ओरिजिनल पीस जैसा तैयार नहीं हो सकता। बट इज देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ पेपर? क्या इस पेपर की प्रॉपर्टी में चेंज हुआ? प्रॉपर्टी मीन्स देखिए, अगर मैं इस कागज को बर्न करती हूँ तो इट कन्वर्ट इनटू ऐश, तो मैं इस छोटे से पीस को भी कट करूंगी तो इट कन्वर्ट इनटू ऐश। ओके, मेरे को इसके ऊपर पेपर से पेन से लिखना है, तो क्या मैं आई एम एबल टू राइट दिस पेपर? यस, पूरे पेपर पे भी मैं लिख सकती हूँ, इस स्मॉल पार्ट पर भी लिख सकती हूँ। तो जो एक पेपर के अंदर क्वालिटी है वो इस स्मॉल पीस के अंदर भी क्वालिटी है। ओके, तो क्या हो रहा है, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज पे चेंज नहीं हो रहा है, इसके कोई चीज नई चीज नहीं बनी है। भाई ये पूरा भी पेपर था, अगर मैं ये छोटा सा पीस भी आपको दूं तो पूछूं व्हाट इज दिस, तो आप बस ये बोलोगे पीस ऑफ पेपर, बट इट इज अ पेपर। ये जो पीस है वो क्या होगा, पेपर होगा। तो प्रॉपर्टी में चेंज नहीं हुआ। ओके, अभी आप समझे, पेपर की प्रॉपर्टी में चेंज नहीं हुआ। हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। कलेक्ट ए चॉक पाउडर लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द चॉक बोर्ड इन योर क्लासरूम। आप क्लासरूम में देखा होगा चॉक से लिखते हैं ना, तो उसका जो पाउडर घिसके जो रब होकर पाउडर जो है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो उस चॉक पाउडर को आप कलेक्ट करो। ठीक है, और क्रश स्मॉल पे, यार अगर वो नहीं मिलती है तो एक चॉक को क्या करो, क्रश कर लो। ओके, इनटू डस्ट, और उसको डस्ट में चेंज कर लो। एड अ लिटिल वाटर टू द डस्ट, मेक अ पेस्ट। अब उस चॉक पाउडर के अंदर आप क्या करो, थोड़ा पानी मिलाकर उसको एज अ पेस्ट बना लो। रोल इट इनटू द शेप ऑफ अ पीस ऑफ चॉक, उसको रोल करो प्रॉपर्ली, और आप उसको वापस से किस में चेंज कर सकते हो, चॉक में चेंज कर सकते हो। भाई आप उसके अंदर क्या करेंगे, पानी डाला, वो एक पेस्ट बन गया, देन रोल इट और इट कन्वर्ट इनटू अ चॉक।
let it dry. Did you recover chalk from the dust? Okay, तो अब हमें क्या मिला, हम चौक डस्ट है उससे हमें वापस क्या बन गया, चौक बना सकते हैं, चौक से ये बना सकते हैं. ओके, तो अपन ने क्या देखा कि बोथ फर्स्ट वन इज, दोनों चीजें हो सकती है ना भाई, पूरी चौक है उसको वापस उसमें चेंज कर सकते हैं. बट जो चौक पाउडर है और चौक है, ठीक है, तो क्या उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हुई, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई? नो. कोई न्यू सब्सटेंस बना? नो भाई, मैंने चौक को पीस दिया, पानी मिलाया, वापस से वो चौक पाउडर तैयार हो गया, चौक तैयार हो गई. तो कोई प्रॉपर्टी में चेंज आया? नो. कोई न्यू सब्सटेंस मुझे मिला? नो. ओके, नेक्स्ट इज एक्टिविटी 6.3. Take some ice in a glass or plastic tumbler. Melt some small portion of ice by placing the tumbler in the sun. You have now a mixture of ice and water. Now place the tumbler in freezing mixture. Does the water become solid ice once again? तो आप मुझे ये बताएं कि आप एक आइस पीस को ले रहे हैं, देन आपने उसको सन के सामने रख दिया, मेल्ट हो गई, देन आपने वापस उसको फ्रीजर में रखा, इट टर्न अगेन इनटू अ सॉलिड फॉर्म. ओके, आपको एग्जांपल समझ में आ रहे हैं? तो क्या वाटर और आइस की प्रॉपर्टी चेंज हुई? स्टेट चेंज हुई लेकिन प्रॉपर्टी चेंज नहीं आई. बोथ आर द सिमिलर. हम आइस का भी फॉर्मूला H2O ही लिखते हैं, वाटर का फॉर्मूला भी H2O ही लिखते हैं. ओके, तो बोथ आर द सेम थिंग, नॉट अ डिफरेंट थिंग. ओके, so all are the example of a physical change. All are the example of a physical change. So here now the time of we understand about the what is physical change. When a change occur only in the physical property of a substance, physical change क्या होता है बेटा, कि ऐसा चेंज हो जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो. व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी? जस्ट लाइक इट्स साइज, मे बी साइज के अंदर चेंज हो जाए, शेप में चेंज हो जाए, स्टेट चेंज हो जाए, कलर चेंज हो, मे बी टेम्परेचर चेंज हो, मे बी टेक्सचर और वॉल्यूम भी चेंज हो, इट इज सेड टू बी ए फिजिकल चेंज. ओके, तो हमने फर्स्ट एग्जांपल पे वापस मूव ऑन होते हैं. तो पेपर पीस में क्या हो रहा है बेटा, साइज चेंज हो रहा है, नथिंग एल्स. तो हमने कटिंग कर दी तो एक बिग पीस स्मॉल पीस में चेंज हो गया, दैट मीन्स साइज के अंदर चेंज हो रहा है. ओके, सो कटिंग ऑफ पेपर इज अ फिजिकल चेंज. ओके, नाउ चॉक पाउडर एंड चॉक. ओके, तो किस चीज में चेंज हो रहा है बेटा? टेक्सचर में चेंज हो रहा है. जो चॉक पाउडर है वो फाइन पाउडर है, चॉक जो है वो सॉलिड है ना, तो टेक्सचर में चेंज हो रहा है, ठीक है, शेप में चेंज हो रहा है, तो इट इज अ physical change. 6.2 example is a physical change. Next we move to a 6.3 activity. Here we discuss that the ice convert into a water and water convert into a ice. So what is changed? Solid convert into a liquid, liquid convert into a solid. Means what is here change? क्या change हो रहा है? यहाँ पर change हो रहा है state. So that is a physical change. I repeat again and again. Definition of physical change, all of you please understand about that, कि when a change occur only in a physical property like a substance, size, shape, state, color, temperature, texture or volume. Okay, it is said a physical change. In a physical change no new substance is formed. वही substance रहता है, new substance form नहीं होता है. Okay, I think 6.1, 2 and 3 activity you all of you understand. Next activity is 6.4. we discuss in a next class. Okay, so both all three activities are the example of physical change. 6.1 changes in shape, changes in texture. Okay, next changes in state. Okay, 6.3 changes in state. I hope you understand all three activities.